Welcome to all in our maths class. In this class, we will discuss about polar coordinate. In previous class, we have studied about general solution and its problem. Okay. So, what is the polar coordinate? Polar coordinate means क्या होता है? अब let we know all the Cartesian coordinate. Cartesian coordinate means जो 2D ज्योमेट्री में रहते हैं x y उसको एक्सप्रेस करते हैं ordered pair of x y is called the Cartesian coordinate. But polar coordinate we represent in ordered pair of r theta. Okay. अब देखो what is r and what is theta. अब here one diagram is given. Let O be the fixed point. We can say pole and ray OX be the fixed ray and draw the another ray which is OP and length of this ray is r, small r, and angle made by this ray is theta. Okay, so we express the polar coordinate in r theta. Okay, here some remark is given in our textbook. One, our theta is lies in between 0 to 2 pi. थीटा हमारा किस में चाहिए 0 to 2 पाई में. देन पोल हैज नो पोलर कोऑर्डिनेट. जो पोल है उसको ओ उसको पोलर कोऑर्डिनेट नहीं रहेंगे. वेक्टोरियल एंगल थीटा इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन. मतलब वो क्या रहेगा स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल रहेगा मतलब पॉजिटिव एंगल रहेगा. तो ये कुछ रिमार्क गिवन है. नाउ नेक्स्ट वी सी रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट Cartesian and polar coordinate. Okay, so again I am going to explain with the same diagram. Okay, this is x-axis and this is y-axis. Okay, draw the perpendicular from point P on x-axis. Again draw the perpendicular from point P to y-axis. So ये distance कितना होगा x होगा. ऑब्वियसली ये भी x होगा और ये कितना होगा y होगा और ये अच्छा इसके कोऑर्डिनेट हम डिनोट करेंगे x y. ओके, ऑलवेज x y रहते हैं तो ये क्या होगा y. अब देखो रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है. तो वी नो दैट p जैसे x y है. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या तो डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या तो पाइथागोरस या यूनिट सर्कल्स हैं. हम इसको x और y कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे फाइंड आउट करेंगे. वी नो दैट या तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन में देखो साइन थीटा रेशियो क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस हियर r एंड अपोजिट साइड y. सो साइन थीटा मीन्स क्या होता है y by r. देन सिमिलरली cos थीटा मीन्स क्या होगा x by r. अगर उसको रीअरेंज करोगे तो y we will get y equals to r sin theta and x is equal to r cos theta. So therefore p can be expressed as p of x y. ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है हम उसको क्या लिखेंगे p of r sin theta r cos theta and r sin theta. And this relation is called the relation between Cartesian and polar coordinate. So I hope you understood. So okay, let's see the example which is based on polar coordinate and Cartesian coordinate. So example is here. Find the Cartesian coordinates of the point whose polar coordinates are given. अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई में गिवन है. वी हैव टू फाइंड r एंड थीटा. तो इसके लिए हमको r एंड थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो गिवन अब देखो कंपेयर करो ये r थीटा से. तो r इज हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इन दिस फॉर्म
P of, so P of r theta. So therefore here, right here, r equals to what? 2 and theta equals to pi by 2. Okay. Then we know that the relation between the Cartesian coordinate and polar coordinate. So what? X is equal to r cos theta and y equals to r sin theta. Okay. So put the value. X is equal to 2 into cos of pi by 4. Here we want pi by 4. Sorry. Okay. Pi by 4 and y equals to 2 sin pi by 4. Then simplify it. We know that the value of cos pi by 4 means cos 45 degree. Cos 45 degree 1 upon under root 2. And same here, cos sin pi by 4 means 1 upon root 2. Then simplify. अब ये 2 को into we can write under root 2 into under root 2. So under root 2 into under root 2 upon root 2. X is equal to and y equals to root 2 upon root 2 upon root 2. Root 2 get cancelled and we get x is equal to root 2 and y equals to root 2. Okay. तो हमने x और y फाइंड आउट किया है और ये जो x और y मीन्स क्या होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. सो देयरफॉर p ऑफ x y इज इक्वल्स टू p ऑफ रूट 2 अंडर रूट 2. सो देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज रूट 2 कॉमा रूट 2. तो इस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट गिवन रहा तो वी कैन फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. तो ये था, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया है. अनदर एग्जांपल है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है, उसको हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. तो इसके पहले मैं एक आपको कंसेप्ट बताऊंगी कि r और थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो हमने कार्टेशियन मतलब ये डायग्राम में ऐसे रिलेशन फाइंड आउट किया था. ये p x y है और ये r, देन ये थीटा x y एंड ये अगेन y x. ओके. अब देखो यहाँ पे r हम क्या करेंगे, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमको वैल्यू ऑफ r चाहिए. तो r हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नो दैट द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होगा. तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ r. देन थीटा. अब थीटा मीन्स क्या होता है? अगेन रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट. r x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा. तो y बाय x क्या होगा? r cos r sin थीटा अपॉन r cos थीटा. ओके. तो देखो ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो मैं दूसरा मेथड बताऊंगी. r गेट कैंसर, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू x बाय y बाय x एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x. इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. या तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताऊंगी. ठीक है. तो आपको ये रिमेंबर रखना है, r मीन्स क्या होता है? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखो सोल्यूशन गिवन क्या है? गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई मीन्स 1 upon root 2 1 upon under root 2. So here x means क्या होगा? 1 upon root 2 and y means क्या होगा? माइनस है यहाँ पे, सॉरी माइनस 1 upon root 2. ओके. देन अभी therefore r means क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. वैल्यू पुट करो. ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होगा? 1/2 प्लस अगेन 1/2.
तो 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू √1 मीन्स 1. सो आर की वैल्यू क्या मिल गई 1. बट अगेन हमको क्या चाहिए थीटा चाहिए. तो अगेन x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. तो x क्या है हियर 1/√2. r1 है कॉस थीटा होगा 1 इंटू. सो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2 हो गया. ठीक है. देन नेक्स्ट y एंड y इक्वल्स टू क्या है r साइन थीटा. अब y मीन्स क्या है -1/√2 इक्वल्स टू 1 इंटू साइन थीटा. ओके मीन्स देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू -1/√2. अब देखो हमको क्या फाइंड आउट करना है एंगल थीटा. अब थीटा एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे. जैसे हमने जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कोऑर्डिनेट एक्सिस से हमने फाइंड आउट किए थे, तो वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे. वी नो दैट 2D ज्योमेट्री. यहाँ पे आपको एक ट्रिक्स पता है, ऐड शुगर टू कॉफी. ऐड शुगर टू कॉफी. अब देखो ऐड मीन्स ऑल. यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या रहते हैं पॉजिटिव. यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं. रिमेनिंग आर ऑल्स निगेटिव. हियर टैन एंड कॉट पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर ऑल्स निगेटिव. यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव एंड बाकी क्या रहते हैं निगेटिव. तो हमको ऐसे अब देखो यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू π/4 मीन्स 1/√2 मीन्स π/4 वैल्यू होती है. यहाँ पे भी अगर आप सोचोगे तो sin थीटा इक्वल्स टू -1/√2 है, लेकिन sin π/4 इक्वल्स टू +1/√2 है. तो हमको ये दोनों भी एंगल सेम चाहिए. ऐसे दोनों भी एंगल लेना है कि जिसकी वैल्यू सेम होना चाहिए. यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो cos π/4 या sin π/4 की वैल्यू 1/+1/√2 होती है, माइनस नहीं. तो इसलिए वो एंगल डज नॉट एग्जिस्ट. तो हमको दूसरा एंगल लेना है. तो हम वो एंगल हमारा ऑब्वियसली ये क्वाड्रेंट में होगा कि ये यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा एक एंगल है कि जिसकी वैल्यू दोनों ही सेम आती है, मतलब समथिंग होगा. तो वो कैसे फाइंड आउट करना है. पहले बेसिकली हमको पता है यहाँ पे हम लेंगे π/4 एंगल कंसीडर करेंगे. अब देखो ये यहाँ तक π/2 रहता है, यहाँ पे यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π रहता है. तो यहाँ पे कोई तो भी एंगल होगा कि जिसकी वैल्यू कॉस मतलब पॉजिटिव आती है और निगेटिव, ऐसे दो फंक्शन लेना है. यहाँ पे एक ही ऐसा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट की कॉस पॉजिटिव है और साइन क्या होगा निगेटिव. तो हमको यहाँ ये इसका एंगल फाइंड आउट करना है. तो वो एंगल कैसे फाइंड आउट करना है. ये कोई एंगल ऐसा होगा कि कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 2π माइनस थीटा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी. ये अलाइड एंगल लेना है. और साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 2π माइनस, ऐसे आएगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे थीटा हमको ये लेना है π/4, उससे एंगल वो फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो क्या होगा cos π/4 इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे देखो cos ऑफ π/4 इक्वल्स टू cos 2π माइनस π/4. इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ये cos 7π/4 मीन्स क्या होगा cos π/4. सेम साइन ऑफ 2π माइनस π/4 इक्वल्स टू माइनस साइन π/4 होता है. अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या है 7π/4 इक्वल्स टू माइनस साइन π/4. अब देखो ये 7π/4 ये एक ऐसा एंगल है कि जिसकी वैल्यू यहाँ पे अगर रखोगे आप थीटा तो cos 7π/4 इक्वल्स टू 1/√2 होता है और साइन 7π/4 इक्वल्स टू -1/√2 होता है. मतलब कहने का ये है कि एंगल ये दोनों भी सेम होना चाहिए. ओके. क्योंकि हमने जब डिफाइन किया था उसी में थीटा क्या रहेगा हमारा एक ही रहेगा ना, चेंज नहीं होगा. तो हम लेने के लिए हम π/4 भी ले सकते थे, लेकिन
हमको एंगल सेम होना चाहिए, मतलब इसमें भी वही साइन पाई बाय 4 की वैल्यू प्लस ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे निगेटिव गिवन है तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा थीटा क्या होगा, तो ये थोड़ा सा जो मैंने पार्ट अभी एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा ध्यान से रिमेंबर रखो और अंडरस्टूड करो। सो थीटा इज हियर 7 पाई बाय 4। और इसके पहले मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बताया था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से कैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं। सो देयरफॉर तो कार्टेशियन P ऑफ r थीटा मीन्स क्या होगा, r इज हियर 1 and 7 pi by 4. So this is the required Cartesian polar coordinate of the given question. तो आंसर क्या हो गया हमारा, P of r theta means P of 1 and 7 pi by 4. So okay, I hope you understood. So watch the video properly and try to solve the more example of polar coordinate. So ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करो और